Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to move on to our next discussion. Previously, as you know, we have discussed what is the business activity and how can uh, an entrepreneur start his business. What are the challenges faced by a new business venture and how these challenges can be met. Today, we are going to see how this business activity is managed and how different forms of business structures exist. Basically, these are the legal structures of the businesses. As we earlier discussed the different sectors of the business as well, which you might be remembering that we have three sectors: primary sector, the secondary sector of the business activity, and then the tertiary sector. Primary sector is, if we recall, is the like farming, fishing, oil extraction, which are engaged in the extraction of natural resources. And the secondary sector is that they manufacture and process those natural resources into some usable goods. And the tertiary sector is, which is commonly known as the services sector, like banking, hotel industry, restaurant industry, and these are the three sectors. Look, the importance of each sector is there in every economy. Primary sector is required, then the secondary, the manufacturing is required, and then services. First of all, when the change of sectors occurred, they moved on to the secondary, means that is called industrialization, where huge setup of industries were developed and all were into the manufacturing businesses. And what happened due to this? What could be the benefits of this industrialization? That increased the total output, national output. GDP was increased, and that improved also the living standards of the people. Due to this industrialization, the exports increased and the imports were reduced, and again that increased the total national output as well. Value was added to different natural resources and usable products were developed. These were the benefits. But there could be problems associated with these changes. What could be the problems? Now, because there were chances for working in an organization, there were chances to earn more. So a huge number of people moved from suburban areas to the main cities, due to which the population of these cities increased, means these cities became densely populated cities, and this again increased the different social problems as well. Now, much of the growth of this manufacturing industry is due to the expansion of the businesses, like they moved from local business to the national business and then international and the multinational businesses. Now, in the recent years, like some years back, like in 25 years back or 50 years back, probably 25 years back, this change started occurring, that industrialization was being converted into deindustrialization. Means now service industry is getting boost. क्यों सर्विस इंडस्ट्री की तरफ लोग चले गए? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग आपकी एक कहते हैं कंप्लीट हो गई, अब उसमें मजीद कोई नज़र नहीं आ रहा कि इसमें मजीद हम कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं, मजीद को इंक्रीज कर सकते हैं, और राइजिंग इनकम की वजह से और बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स की वजह से
लोग जो है सर्विसेज की तरफ मूव होना शुरू हो गए. मींस दे स्टार्टेड प्रेफरिंग टू ईट आउटसाइड. होटल बिजनेसेस चल पड़े, आपके रेस्टोरेंट बिजनेसेस चल पड़े, आपके बैंकिंग की फैसिलिटीज की डिमांड बढ़ गई. तो इस वजह से क्या हुआ कि लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चल पड़े. नो, अगर आप आजकल के जमाने में देखो तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी, सब कुछ हो चुका, और अब वो किस तरफ हैं? अब वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हैं, यानी सर्विसेज सेक्टर को वो बूस्ट कर रहे हैं. तो इसी बेस पे हमारे पास दो किस्म के सेक्टर्स आते हैं. एक को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर और एक को कहते हैं प्राइवेट सेक्टर. मींस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस which are accountable and which are controlled by the central government or the local government as well. Means these are the businesses which are controlled by the government. That is why these are called public sector organizations. And now private sector organizations, these are the businesses which are owned and controlled by the private people. So there is a huge difference. तो पहली बात तो ये आ जाएगी कि जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस हैं उनका जो मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट मेकिंग, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. जबकि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका प्राइम फोकस प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता. इन मोस्ट ऑफ द केसेस उनका प्राइम फोकस होता है द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. आप पर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आप मतलब जितने भी हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, आपकी ये जो 1122 है, दीज आर क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको आपकी बेहतरी के लिए काम कर रही हैं. तो ये तो हो गया एक बेसिक सा मामला. अब हमने देखना ये है कि जो डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के वो क्या हैं और मतलब कैसे उनके कोई फायदे कोई नुकसान हमने देखना है. पहले तो बात ये कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एक्टिविटी आप पढ़ चुके हैं कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है. यानी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज इन ऑर्डर टू meet the needs of the people and to earn the profit. So all these organizations क्या करती हैं? they try to achieve their objectives. अब objective कुछ भी हो सकते हैं and हम objectives भी पढ़ेंगे. Objectives देखें, स्टार्ट में कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव इन द बिगनिंग क्या होगा? सर्वाइवल. सबसे पहले सर्वाइवल. इनकी जरूरत है कि दे नीड टू बी डायरेक्टेड, मींस दे हैव टू हैव अ कॉमन गोल, और उनका एक स्ट्रक्चर होगा और उनको जो भी उस कंट्री में या उस लोकेलिटी में या उस प्रोविंस में जो उनको लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बगैर उनका काम नहीं चलेगा. तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफी तफसील से. So in private sector, there are two types of business organizations. एक को कहते हैं हम unincorporated business और एक दूसरे को कहते हैं incorporated business. Now what is unincorporated business? That is businesses where there is no difference between the owners and the business. Generally, these are owned by one person or a few partners. तो आप यहां पे इसको हम तफसील से मजीद डिस्कस करेंगे कि अनइनकॉर्पोरेटेड से क्या मुराद है. और दूसरा क्या आ गया? इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, जिनको कि हम कहते हैं दीज आर द सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज और एंटिटीज फ्रॉम इट्स ओनर्स. यानी ओनर्स और हैं और बिजनेस की लीगल आइडेंटिटी और है. सो बिजनेसेस कैन बी यूज्ड, taken over and liquidated in the case of incorporated businesses. Okay. अब नेक्स्ट आ जाता है जी, जैसे हमने अभी बात की लोकल बिजनेसेस. लोकल बिजनेसेस का हम पहले भी देख चुके क्या है?
लोकल बिजनेसेस जो कि स्मॉल एरियाज में ऑपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे आपका पहचान स्टोर है। सो पहचान स्टोर क्या है? एक लोकल बिजनेसेस है जो कि सिर्फ एक स्मॉल लोकेलिटी में काम कर रहा है। इसी तरह कोई हेयर ड्रेसिंग सैलून है तो वो क्या है? एक लोकल बिजनेस है, क्योंकि वो एक ही जगह पे है। और उसके बाद अगर वही बिजनेस अपनी ब्रांचेस दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पे बनाने शुरू कर देता है, तो अब क्या होना शुरू हो गया? एक्सपेंशन होना शुरू हो गई। और जब वो एक्सपैंड कर जाता है, जैसे कल हमने एग्जांपल दिए अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उन्होंने स्टार्ट सियालकोट से किया और अब हर जगह पे उनकी ब्रांचेस हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहेंगे कि दिस इज द नेशनल बिजनेस। और फिर वो बिजनेस जो कि एक मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क में चला गया, एक्सपेंशन इतनी कर ली कि दैट मूव्ड आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री, उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस। और अगर एक से ज्यादा मुल्कों में चला गया तो फिर वो मल्टीनेशनल बिजनेस हो जाता है। और मल्टीनेशनल बिजनेसेस क्या होते हैं वो हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, लीगल स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, तो लीगल स्ट्रक्चर्स में क्या है? सबसे पहले हमने कहा अनइनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस में अनइनकॉर्पोरेटेड भी हो सकते हैं, इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकते हैं। टाइप्स क्या क्या हैं हम इनको जस्ट उनके नाम देख लेते हैं, फिर इनकी तफसील भी पढ़ेंगे। कि फर्स्ट इज द सोल ट्रेडर, देन पार्टनरशिप्स, कोऑपरेटिव्स, लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ जाएंगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आ जाएंगी। और इसके अलावा हम मजीद देखेंगे होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं, फ्रेंचाइजेस क्या होती हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये लीगल स्ट्रक्चर्स हैं बिजनेसेस के। तो ये हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोल ट्रेडर, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। ज्यादातर केसेस में जब भी नया बिजनेस स्टार्टअप होता है तो दो चांसेस होते हैं, या तो वो सोल ट्रेडर होगा या पार्टनरशिप होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द स्टार्टअप ऑफ द बिजनेस इज बेसिकली अ सोल ट्रेडर बिजनेस। सोल ट्रेडर इसको क्या कहते हैं? बिकॉज इट इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। इन पाकिस्तान सोल ट्रेडर इज द टर्म विच इज यूज्ड इन यूके। In other countries, the term used for sole trader is the sole proprietorship. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर एक ही बात है। अब हमने ये कहा कि ये एक पर्सन है जो इस बिजनेस को ओन करता है, और ये एक पर्सन जो है he can employ any number of people in his organization, in his business. So easy to establish। एक बंदा उसने कोई भी काम शुरू कर दिया है, जैसे मतलब मैं हूं तो मैं अगर थोड़ा सा सरमाया इकट्ठा करके तो मैं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लेता हूं। डिपार्टमेंटल स्टोर सिंगल पर्सन ओन बाय मी। अब उस पे मैं एक बंदा काउंटर पे रख सकता हूं, एक बंदा जो है वो चीजें सप्लाई करने के लिए हो सकता है। तो एनी नंबर ऑफ पीपल आई कैन एम्प्लॉय। एडवांटेजेस क्या हैं जी सोल ट्रेडर के? जैसे अपने अभी बात की कि दे डू नॉट फेस अ लेंथी सेटिंग अप प्रोसीजर or incur expensive administration cost. See, easy to establish, no administration costs. और एक फायदा बहुत बड़ा इसका वो क्या है कि जो प्रॉफिट्स हैं, जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हैं, वो ओनर के अपने हैं। He is to keep all the profits with himself. कोई उसमें शेयरिंग नहीं है, राइट? ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जितनी वो ज्यादा मेहनत कर ले, रात दिन लगा ले, जो मर्जी कर ले, उससे जितनी उसकी अर्निंग बढ़ेगी, जितने प्रॉफिट बढ़ेंगे वो उसके हैं। एक और फायदा क्या है कि वो वर्किंग आवर्स और हॉलीडेज खुद भी चूज कर सकता है। एक तो ये कि उसने गवर्नमेंट के अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनको कंप्लाई करना ही करना है। उसके अलावा वो खुद भी चूज कर सकता है कि भाई आप मतलब 10 घंटे मैंने काम करना है, 10 की 12 घंटे काम कर सकता हूं मैं, नहीं 10 घंटे काम करता, क्योंकि काम करने पे तो कोई पाबंदी नहीं। अगर हॉलीडे गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस्ड हॉलीडेज फ्राइडे है तो वो फ्राइडे को तो हॉलीडे करनी है, उस पर तो आप नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का डिसीजन है। लेकिन उसके अलावा आप मतलब ना हॉलीडे करें, आप सारा दिन काम करें,
तो ये चीज है कि जिसका वो खुद फायदा उठा सकता है, उसको पूरे का पूरा कंट्रोल है हर चीज के, वो बाख्तियार है, ही इज टू मेक द डिसीजंस, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और वो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज ही इज वन एंड ओनली, आई वुड लाइक टू से वन एंड ओनली। तो भाई सिंपल हो गया कि आसानी से स्टैब्लिश भी कर लिया, कोई कॉस्ट भी नहीं आई, डिसीजन मेकिंग भी अपनी है, अपने वर्किंग आवर्स भी अपने हैं, हॉलीडेज भी वो चूज कर सकता है, तो मतलब इससे ज्यादा और क्या चाहिए, एंड इट इज इजी टू एस्टैब्लिश। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला डिसएडवांटेज, सोल ट्रेडर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अब यहां से आपने एक चीज वो भी याद रखनी है, इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। तो सोल ट्रेडर को हमने कहा था इट इज अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, तो उसका मतलब क्या है कि दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अब बात मजीद आगे चले तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज से क्या मुराद है कि इन केस दे टेक द फाइनेंस फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशन और सम पर्सन एज वेल, उधार ले लिया उन्होंने, अब उधार लिया किसी, जाहिर है कोई सिक्योरिटी तो दी होगी उन्होंने, आमतौर पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बगैर सिक्योरिटी के तो कोई उधार किसी को नहीं देते। इसी तरह अगर पर्सनल लेवल पे भी लिया तो वो भी कोई ना कोई सिक्योरिटी तो मांगते ही हैं, लेते ही हैं। अब हुआ क्या कि अगर वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाया, अपने फाइनेंस को टाइमली रिटर्न नहीं कर पाया, तो क्या होगा कि उस पे लिक्विडेशन आएगी, यानी बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर कर सकता है वो। लिक्विडेशन, जब लिक्विडेशन की बात आएगी तो अब यहां से समझिए कि जितने उसके एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स भी, और अगर कोई उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर भी एसेट्स हैं, तो सब के सब एसेट्स सेल किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू मीट दोज ऑब्लिगेशंस। तो ये मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटीज का, कि सारे के सारे एसेट्स जो उसके हैं वो एट स्टेक है, राइट? और इसीलिए इसको कहते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अब ज्यादातर जो इसमें बिजनेस स्टार्टअप की, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि सोल ट्रेडरशिप में भी ज्यादातर बिजनेसेस के स्टार्टअप्स जो हैं वो पर्सनल सेविंग्स से ही होते हैं। तो अब पर्सनल सेविंग कुछ के पास तो होगी, कुछ के पास कम होगी, कुछ के पास ज्यादा होगी। तो एक डिसएडवांटेज ये भी है कि पर्सनल सेविंग कितनी को यूज की जा सकती है। अब उनके पास कोई कोलेट्रल्स भी नहीं होते, मींस कोई सिक्योरिटी नहीं होती उनके पास ऑफर करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि जिसके अगेंस्ट वो कोई फाइनेंस रेज कर सके, कोई लोन ले सके। मोस्ट ऑफ द केसेस उनके पास कोई कोलेट्रल नहीं होता, दैट सिक्योरिटी उसको हम कोलेट्रल कहते हैं। ओके, अब उसको बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि सारे के सारे, जैसे हमने कहा था कि एंटरप्रेन्योर होगा तो उसको मल्टी स्किल होना चाहिए, तो अब नए नए स्किल सीखने के लिए उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब अगर खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाता है तो क्या हो गया भाई? बीमार हो गया तो बिजनेस ठप हो गया ना, कौन चलाएगा बिजनेस? क्योंकि वो अकेला तो है, सब कुछ उसी ने करना है, डिसीजन मेकर भी वही है, सब कुछ वही कर रहा है। तो अगर बीमार हो गया और अगर खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ डेथ, तो बिजनेस क्लोज्ड, अब बिजनेस ही बंद हो गया, खत्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस सोल ट्रेडरशिप का। और बिजनेसेस क्या करते हैं? दे रिलाई ऑन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ ओनली वन पर्सन, राइट? और जो हमने कहा कि अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो वो सब कुछ खत्म, अब वो बिजनेस ही ठप हो गया, बंद हो गया, अब कैसे चलेगा भाई? तो ये इसके डिसएडवांटेजेस आ गए। ओके, सोल ट्रेडर के बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या? इसमें नेचुरली एक से ज्यादा लोग आ जाएंगे, यानी पार्टनर्स बन जाएंगे। अब जब पार्टनर्स बन गए तो वो अब शेयर कर रहे हैं इस चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी और प्रॉफिट्स को भी और लॉसेस को भी। कुछ भी हो सकता है ना बिजनेस में, जरूरी तो नहीं कि हर वक्त प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या हुआ कि जब एक से ज्यादा पार्टनर्स आ गए, और कहां तक हम जा सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप की क्या है, पार्टनर्स की क्या है? यू हैव मैक्सिमम ऑफ 15 पार्टनर्स। पार्टनरशिप आपकी स्टैब्लिश हो गई। अब इसमें भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है,
सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, और क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट जो है वो 500 है। 500 का हम एक डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसके ऊपर हम ये डीड ऑफ, उनके नाम, उनके एड्रेसेस, फिर क्या आ जाएगा कि कितना कितना सरमाया वो लगा रहे हैं, जो कैपिटल वो इनपुट कर रहे हैं वो कितना है। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस एज वेल, ये भी उस पार्टनरशिप डीड का हिस्सा बनेगा। उसमें फिर प्रोसीजर होगा कि भी कैसे इस पार्टनरशिप को अगर एंड करना चाहें तो एंड किया जा सकता है। फिर उसमें क्लॉज होगी कि अगर कोई पार्टनर ऐड करना हो तो वो कैसे ऐड होगा। फिर उसमें ये क्लॉज होगी कि कितना हर पार्टनर के पास कंट्रोल होगा, क्या ऐसे रूल्स होंगे कि जिससे मजीद हम पार्टनरशिप को डेवलप कर सकेंगे। उसमें फिर एक क्लॉज होगी क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस जो है ये लोन ले सकता है, नहीं ले सकता। फिर इसमें ये भी क्लॉज होगी कि इनके एनुअल फाइनेंशियल्स कब बनेंगे और किसके साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट क्लॉजेज हैं, एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये सारी की सारी क्लॉजेज होती हैं रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। नाउ एडवांटेजेस क्या है पार्टनरशिप के, कि देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू कंप्लीट। जैसे मैंने कहा, लंबी चौड़ी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, बस सिर्फ ये कि एक पार्टनरशिप डीड आपने बनानी है, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि जब आप पार्टनरशिप बना रहे हैं और अगर उसमें कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन आप एज अ पार्टनर ले लेते हैं तो उससे आपकी बिजनेस की जो साख है वो बेहतर हो जाती है, उसकी रनिंग इंप्रूव हो जाती है। और क्योंकि ये बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस थोड़ा सा लार्जर होता है इन कंपैरिजन विद द सोल ट्रेडर, तो इनमें कोलेक्ट्रल भी ज्यादा होता है, मतलब अवेलेबल हो सकता है, तो ये ज्यादा फाइनेंस रेज कर सकते हैं एज कंपेयर टू द सोल ट्रेडर। और जब पार्टनरशिप्स आ गई तो उसमें वर्कलोड भी शेयर किए जा सकते हैं, यानी एक पार्टनर अगर प्रोडक्शन में बेहतर है या प्रोडक्शन टैक्टिक्स जानता है तो उसको प्रोडक्शन उसके हवाले कर दी जाती है। एक पार्टनर अगर मार्केटिंग में बेहतर है तो उसको कहा जाता है कि तुम मार्केटिंग का पोर्शन संभालो। और एक पार्टनर अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देख सकता है तो उसको कहा जाता है कि भाई तुम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को बिजनेस के देखो। तो ये उसका फायदा होता है कि जब आप एक से ज्यादा लोगों को लेके आते हो। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहली बात वही आ जाएगी कि इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी ईच पार्टनर इज इक्वली लायबल फॉर द टैक्स, और हर एक के पर्सनल एसेट्स जो हैं एट स्टेक होंगे। रिमेंबर, प्रॉफिट्स जो हैं वो सब में शेयर किए जाएंगे और इसी तरह लॉसेस भी शेयर होंगे। मजीद क्या आ जाएगा कि दे हैव, वहां पे डिसएग्रीमेंट आ सकता है, डिसएग्रीमेंट आएगा पार्टनर्स में, तो उसको क्या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड का हिस्सा होगा, राइट। फिर इसमें मैक्सिमम जो पार्टनरशिप अलाउ करती है कि भाई इसमें 20 पार्टनर्स हो गए, प्रीवियसली आई सेड 15, अब ये चेंज हो गया 20 मैक्सिमम 20 पार्टनर्स आप इसमें ले सकते हैं। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। अगेन जैसे हमने कहा अनलिमिटेड लायबिलिटीज हैं तो इसका अनइनकॉर्पोरेटेड स्टेटस होगा, और एक पार्टनर के डिसीजन जो है, जो भी वो करता है या जो मैनेजिंग पार्टनर है, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो वो लीगली बाइंडिंग है वो हर पार्टनर के ऊपर, राइट। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। ओके,
So let's end up over here. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे कि नेक्स्ट कौन से लीगल स्ट्रक्चर्स हैं बिजनेसेस के. ओके, थैंक यू. We'll have question answer session after 5 minutes.